हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं विच इज द वेरी रीसेंट इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी। और आपको पता है दैट दिस इशू करेंटली रेज्ड बिकॉज ऑफ सम ट्वीट्स विच द मालदीवियन मिनिस्टर्स डिड डायरेक्टिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु विजिटेड मालदीव्स वेरी रिसेंटली। और इसी इशू के दौरान क्या हुआ, इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ट्वीट्स एंड India decided to boycott Maldives, and a lot of issues has come up till then. There has been a drift between the relations between India and Maldives. तो जो भी बच्चे अभी रिसेंट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके पर्सनल इंटरव्यू में या लेक्चरेट या फिर जीडी में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो आई होप कि आपके बारे पास काफी डिटेल और नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो इस टॉपिक के बारे में, सो दैट इफ क्वेश्चंस कम यू कैन आंसर देम वेरी मच इन अ डिटेल्ड मैनर। जो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, दोस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू एंड द आंसर्स आल्सो आई विल बी शोइंग यू। नाउ आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू कॉपी पेस्ट दीज आंसर्स, बिकॉज इस आंसर्स के थ्रू आपको एक आउटलाइन, एक गाइडेंस मिलेगा किस तरह आपको खुद के आंसर्स बनाने हैं फॉर दीज क्वेश्चन। सो वन बाय वन वी विल लुक इन टू द क्वेश्चन, वी विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर, द टाइप ऑफ आंसर दैट यू नीड टू गिव फॉर दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस इशू ऑफ इंडिया Maldives controversy. So without much further ado, let's start with the first question. So first question that can come up is to provide a basic outline overview of India Maldives controversy. तो यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है कहाँ से स्टार्ट हुआ, from where, about the tweets, which were the presidents, which were the ministers talking about or tweeting about Prime Minister Narendra Modi ji's visit to Maldives. तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं किस तरह इंडिया मालदीव्स के बीच में ये दरार हुआ और उसके बाद व्हाट इंडिया डिड, व्हाट मालदीव्स डिड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने नॉलेज, अपने अपडेट्स बताने, जो भी नॉलेज आपके पास है अबाउट दिस इशू। Second question आ सकता है about the historical factors. So the interviewing officer can talk about the different historical factors which has contributed to this tension between India and Maldives. So you can talk about various historical factors like geopolitical positioning, trade relations, and diplomatic history. The next question can be, how do India's strategic interest in the Indian Ocean relate to the India Maldives issue? तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल्ड वे में बताना है कि इंडियन ओशन में इंडिया का होल्ड क्या है, how India has sought to maintain stability in the Indian Ocean for maritime security and trade, and how with अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ही रह गया मालदीव्स के साथ तो किस तरह इंडिया is going to suffer, और how these kinds of tensions will be impacting India's interest, which will prompt India to engage diplomatically and to ensure regional stability. The next question can be about the different diplomatic measures. तो ये आपसे आपके ओपिनियन जानने के लिए पूछा जा सकता है that कौन से diplomatic measures इंडिया को लेनी चाहिए to resolve this particular controversy peacefully. So you can talk about your diplomatic dialogues which most of the countries adopt, and it's the best way. You can also talk about different confidence building measures which will involve regional stakeholders and which will foster open communication to resolve it peacefully. The next question can be about the impact of this controversy on the neighboring countries around India and Maldives and how it will affect the broader region as a whole. So you can talk about the way the various neighboring countries of India and Maldives who is getting a lot of gains from this relationship between India and Maldives, and how if there's a rift, what kind of economic and diplomatic consequences they will face. So यहाँ पे आपको हर एक neighboring country के बारे में individually बात करनी होगी. The next question that can come very importantly is about the India Maldives controversy impacting India's security concerns. आपको पता है that ये जो कंट्रोवर्सी है एक चैलेंज हो चुका है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अनसर्टेनिटीज इन इट्स इमीडिएट मैरीटाइम नेबरहुड, और इसके वजह से चाइना इज ऑल्सो कमिंग टू द फ्रंट एंड हेल्पिंग द मालदीव्स टू गो अगेंस्ट इंडिया. सो यू कैन टॉक अबाउट व्हाट डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स इंडिया हैज देयर एंड हाउ दोज डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स कैन सफर बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी. सो बेसिकली आपको पता है दैट मालदीव्स हैज ऑल्सो टोल्ड इंडिया टू रिमूव इट्स डिफेंस from their islands. The interviewing officer can also ask you the next question on this India Maldives controversy about the role of international organization. आपको पता है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रोल प्ले किया था, तो इस कंट्रोवर्सी में भी क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी रोल प्ले करेगा या फिर कर रहे हैं टू एड्रेस ह्यूमन राइट इश्यूज in the context of this controversy. So you can discuss about international organizations, how they oversee and mediate discussion, how they ensure human rights, and what you think which organizations can come up and they can give a collaborative effort can resolve this issue.
Next question that the interview in your personal interview can be asked that if you are in a position of authority, बहुत important question है ये, आपके डिप्लोमेसी, आपके मैच्योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, आपकी इंडिविजुअलिटी को, पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप एक अथॉरिटी के पोजीशन में होते तो आप इंडिया मालदीव्स के इशू को कैसे रिजॉल्व करते. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इन योर आंसर यू ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, respecting the sovereignty of both nations while safeguarding national interest. ये चीज को आपको मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर को देना है ताकि एक इंक्लूसिव और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप आंसर दे सको. The next question can be, how can India balance its geopolitical interest with humanitarian concerns in India-Maldives controversy? So यहाँ पे आपको diplomatic measures के बारे में बात करनी है जिसके through geopolitical interest और humanitarian concerns दोनों ही कोई भी side effects या कोई भी negative effects इन पे नहीं पड़ेगा, कोई negative बुरा असर नहीं होगा. You can talk about any pragmatic approach which you think others or other countries have taken, and you can also talk about your own pragmatic approach if you have to foster stability. इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन कम अबाउट द implications of the India Maldives controversy which are having or which will have on regional trade. This is very important. यहाँ पे आपको ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात करनी है और कैसे ये कंट्रोवर्सी जो है ट्रेड में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बात करनी है बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और किस तरह हमें जो है उसको फुलफिल करना होगा. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम मालदीव्स देन हाउ वी आर गोइंग टू फुलफिल देम. सो यू कैन गिव अ बेसिक idea about what you think. Lastly, the question can come about the potential security challenges that will be, that India will face because of this controversy. So you can talk about the maritime routes, you can talk about potential alliances, you can talk about overall stability of the Indian Ocean, and of course the biggest enemy, biggest rival of India, China. Okay, so India must address these challenges diplomatically and strategically so that it will not pose a challenge for the security concerns of India. So I hope कि आपको समझ में आ गया है किस तरह क्वेश्चंस अगर पूछा जाए इस टॉपिक पे आपको आंसर करना है, और इसके बारे में आप जितना अच्छे से जानकारी ले सको आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट, क्योंकि क्वेश्चंस कैन कम इन मच मोर डिटेल्ड मैनर, तो आप उनका आंसर दे सको बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउ डेज. तो आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाइएगा आपके अपकमिंग एसएसबी में. और ऐसे टिप्स ट्रिक्स और एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए. टुडे यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड ज्वाइन दिस कोर्स. इसमें आपको 5 डे एसएसबी प्रोसीजर्स के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, सारे स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और हर रोज लाइव क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर पाओगे. हमारे पास और भी कोर्सेज अवेलेबल है फॉर रिटन डिफेंस एग्जाम, तो कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो. और किसी भी कोर्स को एनरोल करने के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना ताकि आप 10% डिस्काउंट उस कोर्स में आपको मिल सके. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दैट द सेशन वाज क्वाइट हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. फॉर सच हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशंस लाइक टुडेज, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. जय. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.